Hello student, welcome to our online classes of Priyanka ma'am. Today I tell you computer basics question. Students, in this video I will tell you some basics function of computer. Okay. First is how to change background of desktop. Next one is how to make a new folder, and last one is how to save a file on desktop. Now I tell you first step how to change background of desktop. Let's start. Click on start button, then click on control panel. Now you have to select that option, personalization. Click on that, and now you have to click on that desktop background. You have to. Now here are many backgrounds. You can select anyone from them. Select anyone. For example, you select this. Click on that, and now click on save changes. Here you see your background will be changed. Okay. Now I tell you how to make a new folder. Right click of mouse and click on new and select folder shortcuts, anything. Means for example, you have to paint file, then bitmap image. You have to for a file folder for document, then you can select that and one from here. Okay. So you have to make a new folder. You select folder. Okay. Here is your new folder. Open that. That is empty. You can move any file from here. You can select any file from here and copy that, and the file that is copied in previous session, that paste here. Here is your file. So you can save like that any file from new folder, and you can change the name of the folder like clicking that. By clicking on rename, you can change the name of the folder. If you want to write your name, your any like that. Here your folder name is Priya. So student, I hope you understand how to make a folder and rename it. And our last is how to save a file on desktop. For example, you want to save that file on the desktop. Then click on file menu and here select save. सेव एज पे क्लिक करना है आपको. हेयर यू राइट योर फाइल नेम. फॉर एग्जाम्पल टुडे है इस फाइल का नेम. यू हैव टू सेलेक्ट डेस्कटॉप. हेयर यू हैव टू सेलेक्ट डेस्कटॉप. इट मीन्स योर फाइल विल बी शो ऑन द डेस्कटॉप and click on save. So student, by seeing that video, you have to complete that assignment. You have to follow all these steps that are used to change background, make a folder and save a file on desktop, and write in your assignment work. Okay, thank you. Have a nice day. Good morning students, I Neetu Yadav teaching science in MLP School Rajpura. Welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, in today's video, which is for class 6 to class 9, we study or do an activity about transparency. So students, we know that or we can see in our daily life that some objects or materials show different property or allow different amount of light to pass through them. And this property is known as transparency. In transparency, students, we see that amounts of light can pass depends on different type of objects, like wood and metal objects cannot pass light completely. Some objects can light pass through them easily, like water
transparent substance, and some substance can pass light only partially, means a part of light can pass through them, which is known as opaque materials. Example like frosted glass, butter paper. So in these types, transparency is categorized into three parts: transparent, opaque and translucent materials. So students, let's start our activity. In this activity we have to know which objects which you can easily found at home are show transparent, opaque or translucent material. Let's start our activity, students. Students, today's video, which is for class 6 to class 9th, in this video we do an activity about transparency towards light. In this video we can see that different materials allow different amount of light to pass through them depending on a property called transparency. जो ट्रांसपेरेंसी के बेस पे काफ़ी सारे मटेरियल्स हैं जो क्या करते हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट को पास थ्रू देम, एक दूसरे से पास होने देते हैं, जिसे हम ट्रांसपेरेंसी कहते हैं. जो ट्रांसपेरेंसी इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज: ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल्स. ये थ्री कैटेगरीज हैं ट्रांसपेरेंसी की. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट अवर एक्टिविटी. इन दिस एक्टिविटी यू हैव टू रिक्वायर some glass, transparent glass, wood, plastic cover, frosted glass या frosted paper, और bottle which is a frosted. फ्रोस्टेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स थोड़ा सा धुंधलापन. अब देखिए इस ये का जो बोतल है कंप्लीट ट्रांसपेरेंट नहीं है, फ्रोस्टेड थोड़ा सा धुंधलापन है इसमें, ठीक है. और आपको और क्या चाहिएगा, एक बटर पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने फ्रोस्टेड पेपर का इस्तेमाल किया है. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद द एक्टिविटी. इन दिस एक्टिविटी वी डू विच मटीरियल्स कैन पास हाउ मच लाइट फ्रॉम दैम. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने अभी रूम को डार्क कर दिया थोड़ा सा, और यहाँ पे सोर्स के लिए एक टॉर्च ऑन की है. अब हम देखेंगे कि कौन सी लाइट किस चीज़ को ज़्यादा पास करने दे रही है. तो यहाँ पे मैंने एक ट्रांसपेरेंट ग्लास रखा हुआ है सामने, हमारी टॉर्च के सामने, ठीक है. यहाँ पे इससे आपको क्या दिख रहा है कि जो टॉर्च से जो लाइट है वो पास हो रही है. देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है. तो मतलब जो आपका ट्रांसपेरेंट ग्लास है वो कम्प्लीटली क्या है, पास करने दे रहा है. तो इसका मतलब है ट्रांसपेरेंसी होगी इसमें. ट्रांसपेरेंट मटेरियल क्या होते हैं? द मटेरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम. वो मटेरियल्स जो लाइट को पास होने देते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रांसपेरेंट मटेरियल. जैसे आपका ग्लास हो गया, अल्कोहल हो जाता है आपका, और भी अदर मटेरियल्स. अब देखिए इस ग्लास में मैंने वाटर को फिल करके रखा हुआ है, ठीक है. और ये ग्लास भी ट्रांसपेरेंट है और आपका जो क्या है वाटर भी ट्रांसपेरेंट है. तो हम देखेंगे कि जो वाटर है वो भी क्या है, लाइट को पास करने दे रहा है. देख रहे हैं अब जब मैं इसके ऊपर कर रही हूँ तो वाटर की हमें पार लाइट दिखाई दे रही है. ऐसे अगर हम करेंगे, इधर अगर हम लाएंगे तो हम देख रहे हैं कि इस साइड भी लाइट है वो पास हो रही है. हम दूसरी साइड की चीज़ें ईजिली देख पा रहे हैं. तो मतलब वाटर भी आपका क्या है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका फ्रोस्टेड पेपर या फ्रोस्टेड बोतल. फ्रोस्टेड पेपर और फ्रोस्टेड बोतल को हम जब टॉर्च के सामने, लाइट के सामने लेकर आते हैं तो हमें दिखाई देता है कि दूसरी साइड जब लाइट इस पे फ्रोस्टेड पेपर पे पड़ रही है तो दूसरी साइड क्या है, हमें इतनी क्लियरली लाइट दिखाई नहीं दे रही है. लाइट पास तो हो रही है लेकिन कम्प्लीटली नहीं हो रही है, ठीक है. क्या है, लाइट कम्प्लीटली पास आउट नहीं हो रही है. देखिए इधर से आपको क्या है, लाइट कम्प्लीटली पास आउट होती नहीं दिख रही है. ऐसे ही आपके फ्रोस्टेड बोतल में है. फ्रोस्टेड बोतल में भी क्या है, लाइट देखिए इसके अंदर से कम्प्लीटली पास आउट नहीं हो रही है, ठीक है. हाफ लाइट पास हो रही है, हाफ लाइट पास नहीं हो रही है. इसका क्या मतलब है कि जो मटेरियल विच अलाउ लाइट पास थ्रू देम ओनली पार्शियली इज नोन एज ट्रांसलूसेंट मटेरियल. वो मटेरियल्स जो क्या करते हैं, लाइट को पास तो करने देते हैं लेकिन पार्शियली
only a part of light can pass through them are known as translucent materials. क्या होंगे? जो materials only allow a part of light to pass through them are known as translucent material. Example: frosted glass, frosted bottle, butter paper, etc. Next students, आपका plastic cover or a piece of wood. If in this activity we seen how much plastic and wood can pass light through them. So first we take our plastic cover. In this type we can say that cover cannot pass light through them, completely cannot pass. इसका मतलब क्या है? जो लाइट है completely pass out नहीं हो रही. देखिए इधर तो लाइट है लेकिन इधर क्या है? आपका डार्क है, आपको इतना क्लियरली कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि जो लाइट है वो completely pass out नहीं हो रही है. एज सेम इन दिस पीस ऑफ वुड. ये जो पीस ऑफ वुड है, जब अगर हम इस टॉर्च के सामने लाते हैं तो देखिए completely डार्क हो गया है. इसका मतलब है कि जो आपका वुड है या फिर आपका प्लास्टिक है वो कम्प्लीटली क्या है? लाइट को पास आउट नहीं होने देता है. सो वी कैन से दैट द मटीरियल्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू दैम आर नोन एज ओपेक्यू मटीरियल्स. जो मटीरियल्स लाइट को पास आउट नहीं होने दे रहे हैं पूरी तरीके से, उन्हें हम क्या कहेंगे? ओपेक्यू मटीरियल्स. एग्जाम्पल ऑफ ओपेक्यू मटीरियल्स आर स्टूडेंट्स wood, piece of metal, plastic, etc. So students, in doing this activity we can know about that some materials are pass light and some materials cannot pass light. So let's revise our activity. Transparent glass, water are those materials which allow light to pass through them completely, are known as transparent materials. Frosted glass, a frosted bottle or butter paper are those materials which allow only a part of light to pass through them, are known as translucent materials. Piece of wood, metal, cardboard, etc. are those materials which do not allow light to pass through them, are known as opaque materials. जो मटीरियल्स लाइट को बिल्कुल भी पास आउट नहीं होने दे रहे हैं उन्हें हम ओपेक्यू मटीरियल्स कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका जो एक्टिविटी है ट्रांसपेरेंसी ऑफ लाइट के टुवर्ड्स है. थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स. Students, so let's start our today's preparation for competitive exams. Student, the first question is, the botanical name of the cotton plant is. Botanical name, student, it is the scientific name. You can say that the cotton plant, you have seen the cotton plant, generally हम उसे cotton बोलते हैं, but its botanical name is Gossypium hirsutum. Hydrological, Cuscuta homo sapiens. Student, the right answer is Gossypium hirsutum. Student, Gossypium hirsutum. So your right answer is Gossypium hirsutum. Student, hydrological is the word that is related with the water cycle. Cuscuta amarbel, it is a plant that feed on the, you can say that it is a saprophytic plant. Sorry, Cuscuta is parasitic, not saprophytic, because it feeds on the living plant. Okay student, Homo sapiens is the another name of, is the scientific name of human beings. An instrument is used to detect, sorry student, an instrument used to detect charges on a body. किसी भी एक पर्सन, किसी भी एक चार्ज बॉडी इन द सेंस ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज है, उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज, इज डिटेक्टेड बाय वेव्स, सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोस्कोप, अर्थक्वेक. द राइट आंसर इज इलेक्ट्रोस्कोप. स्टूडेंट, वेव्स आप साउंड वेव्स भी होते हैं, एंड द वेव्स आर ऑल्सो इन द सीज, समुद्र में भी चलने वाली लहरें भी वेव्स ही होती हैं. सिस्मोग्राफ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज़ करके, दैट इज़ यूज टू मेजर द अर्थक्वेक
and earthquake, you know, it is a natural disaster. Electroscope is used to measure the charge on a body. Okay student. Our next question is the unit of loudness is. loudness की unit student क्या है? hertz, newton, phon, neutron. hertz is the unit of sound. okay student, ये sound की है. newton is the unit of force. neutron is presented in the cell diagram. इस तरीके से होता है स्टूडेंट. इसमें न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं. ओके स्टूडेंट, दिस इज न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, योर राइट आंसर इज फोन. फोन इज द यूनिट ऑफ लाउडनेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, एन एमीमीटर इज यूज टू मेजर. एमीमीटर इट इज अ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर और डिटेक्ट इलेक्ट्रिक करंट, electricity, distance, time. Distance, you know, the distance traveled by any object or any vehicle. Time, you know about the time, that is we can see it in the clock or watches. Electricity, you know about it also. The right answer is electric current. Student, electric current, जो electricity के through electric current है आपका, उसको मेज़र करने के लिए हम एमीमीटर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टूडेंट, प्लांट्स दैट ईट्स इंसेक्ट आर कॉल्ड. ऑटोट्रॉप्स, सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवोरस, हेटरोट्रॉप्स. स्टूडेंट, सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट टू फुलफिल देयर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन. सपोज दैट किसी भी प्लांट को नाइट्रोजन की नीड होती है, देन इट ईट्स द इंसेक्ट, और दे आर नोन एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. स्टूडेंट, they are known as insectivorous plants. Student, autotrophs, they are those plants who prepare their food like green plants. Symbiotic, it is a relationship between the two, algae and fungus. algae और fungus जो होते हैं उनके बीच में जो relationship होता है, they both are depend upon each other. वो उसमें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. एक शेल्टर लेता है और दूसरा उससे फूड और न्यूट्रिएंट्स लेता है. एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हेटरोट्रॉप. हेटरोट्रॉप स्टूडेंट, ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, मतलब जो हमारे आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम बात करें तो दे आर डिपेंड अपॉन, दे आर कैटेगराइज्ड ऑन हेटरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक. हेटरोट्रॉपिक में स्टूडेंट क्या होता है, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको खाया जाता है एनिमल्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लांट्स दैट फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम आर कॉल्ड. स्टूडेंट, वो प्लांट दैट फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, सिर्फ एक बार ही फ्लावर आता है उसमें. पेंटाकार्पिक, कार्पिसल, क्लोरोप्लास्ट, मोनोकार्पिक. स्टूडेंट, राइट आंसर इज मोनोकार्पिक. मोनो मीन्स सिंगल, कार्पिक कार्पिसल्स. तो उसमें से सिंगल, सो दे आर नोन एज प्लांट दैट फ्लावर ओनली वंस. जो एक बार साल में खिलते हैं उन्हें हम, सॉरी साल में नहीं, इन देयर लाइफ टाइम, होल लाइफ टाइम ओनली वन टाइम फ्लावर आता है उसमें, दे आर मोनोकार्पिक. ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बोटेनिकल नेम फॉर राइस इज. नाउ राइस का बोटेनिकल नेम इज ओरिजा सटिवा, सैलिब्री एमलेज, एमिनोका ग्रेन, none of these. So student, your right answer is Oryza sativa. Oryza sativa is the botanical name for rice. Student, next question is, the largest tree in the world is banyan, eucalyptus, Seguia gigantica, pine. Student, the right answer is Seguia gigantica. Because banyan ये आपका लार्जेस्ट ट्री नहीं है स्टूडेंट, ये सैक्रेड कह सकते हो आप इसको, इसके लिए पूजा वगैरह होती है एंड बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, बट इट नॉट द लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड. एंड स्टूडेंट, यूकलिप्टस, इट दे आर ऑल्सो नॉन द, दे आर ऑल्सो नॉट द लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड. यूकलिप्टस यू हैव सीन, इसके अंदर कुछ मेडिसिनल वैल्यूज भी होती हैं. स्टूडेंट, पाइन you can see it in the hilly areas that have needle like leaves, needle like structure are the very corner में, like this type of seeds.
दिस टाइप ऑफ लीव्स, ये कोन इस तरीके से निकले होते हैं, दैट दे आर नोन एज द पाइन ट्री. ओके स्टूडेंट, योर राइट आंसर इज सिगुआ गिगांटिका. Herpetology is the study of. Herpetology is known as the study of what? Birds, wild animal, insect, reptiles. Your student right answer is reptiles. If any person is going to study about or is doing study on the reptiles, this study is known as the herpetology. उस study को हम herpetology बोलते हैं. The next question is entomology is the study of. Now entomology is the study of what? Insect, birds, aquatic animals or animals. So student, the insects की बारे में study करना, that is known as the entomology. A person who studies about the insect is known as entomologist. Okay student, have a good day. Goodbye. Good morning students. I am your SST teacher and I teach you GK for your competitive exams, because all you know that competitive exams are very important in our life, because when we want to reach our goals we give various competitive exams. So our MLP school starts special classes for Navodaya Vidyalaya, Kendriya Vidyalaya, NDA, Sainik School, Military School and other exams. So work hard with us and reach your goals. This is for class 6 to 9. There are many organizations in the world, but UNO is the most important organization. So we read about UNO in our this class. Let we start our today's class. We start our class with the introduction of United Nations Organization. Introduction: International Organization of Countries created to promote world peace and cooperation. Means जो UNO के अंतर्गत जितनी भी कंट्रीज आती हैं वो विश्व के अंदर शांति एवं भाईचारे को सहयोग देती हैं. The UN was founded after Second World War, which was ended in 1945. We found the UN after the Second World War. Definition: the UNO is an international organization whose stated aims are facilitating cooperation in international law, international society, economic development, human rights, spatial progress and the achieving of the world. UNO एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो आर्थिक, सामाजिक, मानव के अधिकारों और जो स्पेशल विशेष जो प्रोग्रेस होती है जिनको विश्व प्राप्त करता है, तो इन सारी चीज़ों को बढ़ावा देने वाला संगठन ही UNO है. डेट ऑफ फॉर्मेशन 26 June 1945 with 51 countries. In present there are 193 members in UNO, 5 permanent members and 10 non-permanent members in UNO, and 193 countries are the member of UNO. Establishment of UNO on 24th October 1945. Headquarters of UNO, New York City, USA. Aims and objectives: first, to maintain international peace and security. Second, friendly relation among nations. Third, to achieve international cooperation in solving international problems of an economic, social और humanistic character. इसके उद्देश्य और इसके कार्य क्या हैं? विश्व के अंदर शांति और सुरक्षा बनाए रखना, देशों के बीच में एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखना और विश्व के अंदर जो भी सामाजिक, आर्थिक या मानवीय संबंधी जितनी भी समस्याएं आती हैं, चाहे वो किसी बड़ी बीमारी को लेके हो, चाहे वो बाढ़, भूकंप, किसी भी आपदा को लेके हो, कोई भी संकट हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, ह्यूमनिस्टिक हो, सभी को सोल्व करने में यूएनओ मदद करेगा. ऑर्गन्स:
6 organs of UNO. Organs means part, ang. First, General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, International Court of Justice, Secretariat. I repeat again, there are six organs of UNO. First, General Assembly, second, Security Council, third, Economic and Social Council, fourth, Trusteeship Council, fifth, International Court of Justice, and sixth, Secretariat. After reading about UNO, we do some question answer based on UNO. Question number 1, full form of UNO, United Nations Organizations. Question 2, how many organs of UNO? 6 organs. Third, how many permanent members of UNO? Answer, 5 permanent members. First, China, France, Russia, the United Kingdom and the United States. यूनाइटेड किंगडम के अंदर इंग्लैंड आता है और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अमेरिका, कनाडा, ये कंट्रीज आती हैं जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनओ? 10 members. Our fifth question is, where is the headquarter of UNO? Answer, New York City, USA. Okay students, I revise these questions once again. Full form of UNO, United Nations Organization. Organs of UNO, 6. Permanent members, 5. China, France, Russia, the United Kingdom, the United States. Non-permanent members, 10. And headquarter of UNO, New York City, USA. I hope you understand the UNO topic and all the question answer very well. Write down these questions in your GK notebook and learn them. Thank you. Good morning students, how are you all? I hope you are all fine and fit at your home and doing your study very well. I am Shri Yadav, your maths teacher in MLP School Rajpura. Welcome you all to our YouTube channel of online classes. So today's our topic is mirror image. How we see a image in a mirror. As you see that your left hand will show in a mirror as right and the right will show as a left. So how the figures will show in a mirror, we can see that as in the mirror topic. So students, let's start with a mirrored image topic. So mirror image is that will show the left image to right and right image to left. That means if we want to find out the mirror image of G, so here we have this curve will be at the left place and this will be at the right place. So right place will change to left. That means this part will come before the curve and that will be the mirror image. Similarly K, if you want to see the mirror image, so these two that sign will be at the right place, so here come left place and the straight line will be left में थी, यहाँ पे क्या हो जाएगा right में. These are the mirror image. So all the alphabet, the mirror image of all the alphabet, you have to try yourself. Now let's start with the question. Choose the alternative which is closely resembles the mirror image of the combination. Combination हमारे पास this, जो mirror image है हमारे पास यहाँ पे. Firstly, जब भी कोई word given हो हमारे पास, हम कहाँ से start करते हैं? Last से. From the last we have to we make the mirror image. Okay, so firstly E, the mirror image for E is this. V is a symmetric word. Symmetric word means the mirror image will look like the word as it is. That is, the word will not change when we see it in a mirror image or in real. So E will look like this. V will be same. I will also be a symmetric word. T is also a symmetric word. So these words will not change. Now C यहाँ पे क्या है हमारे पास? राइट में कर्व है एंड लेफ्ट में दिस. सो क्या हो जाएगा? कर्व कहाँ चल जाएगी अब? लेफ्ट में. सिमिलरली E
and F and E. So this will be the correct answer. Otherwise क्या हो जाएगा? This will be E. यहाँ पे E को चेंज ही नहीं करा है, ठीक है, यहाँ पे E को चेंज करा है, लेकिन यहाँ पे इस F को चेंज नहीं करा है, और यहाँ पे किसको नहीं करा है? V E E F E C. ओके, सो दिस विल स्टार्ट विद दिस, बट हमें स्टार्ट कहाँ से करना होता है? यहाँ से यू जाते हैं हम, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट. सो चूज द ऑल्टरनेटिव विच रिजेंबल्स टू द मिरर इमेज ऑफ द कॉम्बिनेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वर्ड. H is also a symmetric word because if we change left to right or right to left, this will always come the same. The result will always be the same. Now H same. K अभी मैंने बताया था K will be the that sign that is less than is comes to greater than. So firstly यहाँ से होगा तो this will K, so that is not the correct answer. Now यहाँ K, तो only option that is left is D, so this will be correct, and you can check it with yourself. 6 will look like this. Y will also be a symmetric word. F will look like this. Then Z will be changed to this. T is a symmetric word and U is also a symmetric word. Now if we want to find the mirror image, where we are given an image, till now we are given alphabet or word combination, but here we are given an image, and mirror will be took place at that place. Mirror will be took place at that place also, but here we are given this mirror will be at this place. So firstly star will be right and Z will be at the left. So change, so star will be left में हो जाएगा and Z will comes to right. Now star will comes to right and this, but Z की इमेज चेंज होगी हमारे पास मिरर में, क्या हो जाएगी? उल्टा Z हो जाएगा हमारे पास, तो क्या हो जाएगा? लेफ्ट में स्टार एंड Z उल्टा, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, नाउ जब भी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में जब भी हमारे पास यहाँ पे U गिवन हो किसी भी एक स्क्वायर बॉक्स या सर्कल में, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं? इस साइन को U है तो क्या हो जाएगा? ये मतलब एक तरीके से ये कहाँ जा रहा है? राइट में, तो अब वो कहाँ जाएगा? लेफ्ट में. तो फर्स्टली इमेज कैसे होगी? U. तो इनमें से ये ऑप्शन नेग्लेक्ट, दिस विल ऑप्शन इज ऑल्सो नेग्लेक्ट, हेयर इट कम्स टू दिस प्लेस, एंड यहाँ पे भी हमारे पास नहीं जा रहा, तो कौन सा ऑप्शन होगा? सिर्फ ये. ठीक है, एक ही कंडीशन होती है कि अगर यूं जा रहा हो तो दूसरा साइन ऐसे जाएगा और उसके बाद हम दूसरा देखते हैं. ठीक है, तो दिस विल कम्स टू दिस, और नाउ हेयर इट will occur at the below this sign, so here it also comes to below this line. Now firstly देखो यहाँ पे भी फिर से वही लाइन है, तो फर्स्टली हम क्या करेंगे? इस लाइन को ये होगी या ये होगी, तो ये दोनों ऑप्शंस तो क्या हो गए? नेग्लेक्ट हो गए. अब इन दोनों में से हमें देखना है. सो लाइन के हमारे पास राइट में क्या है? दिस एरो, एंड लेफ्ट में क्या है? दिस. तो लेफ्ट वाला क्या हो जाता है? राइट में, एंड राइट वाला लेफ्ट में. तो यहाँ क्या हो गया है? दिस विल ऑल्सो, अब देखो यहाँ लाइन है, लाइन के राइट में ही रह गया अभी भी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा. इनके लेफ्ट में एरो हो जाए, लाइन के राइट में क्या हो जाए? दिस 0. सो दैट विल बी द करेक्ट आंसर. सो सी इज द करेक्ट आंसर. So that is all for today. Thank you. Have a nice day. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम, आपकी हिंदी अध्यापिका MLP स्कूल राजपुरा से. बेटा, हमारा आज का सुविचार है कि सच्ची सफलता और सच्चे आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि सच्ची सफलता और सच्चे आनंद का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जो स्त्री या पुरुष यानी कि कोई भी व्यक्ति बदले में कुछ नहीं मांगता, कुछ काम करता है उसके बदले में कुछ नहीं मांगता, तथा जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से यानी बिना किसी स्वार्थ के कोई काम करता है वो ही सफल व्यक्ति है. तो जीवन में हमें सफलता तभी मिल सकती है जब हम बिना किसी स्वार्थ के कोई काम करते हैं, तभी हमें सच्चा आनंद और सच्ची सफलता प्राप्त होती है. अब आगे हम करते हैं हमारा सुलेख और व्याकरण. आज की हमारी
आज का हमारा सुलेख का टॉपिक है हमारा बढ़ती जनसंख्या। भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। भारत की जनसंख्या निरंतर ऊपर बिंदी तैर निरंतर बढ़ती जा रही है के लिए पहले डे और बढ़ती जा रही है। अब यह 130 करोड़ के आंकड़े को अब यह 130 करोड़ के आंकड़े ऊपर चंद्र बिंदु कैडे आंकड़े को भी पार कर गई है इस अंधाधुंध बढ़ती जनसंख्या से अंधाधुंध बढ़ती जनसंख्या से ऊपर बिंदी ख जनसंख्या से अनेक समस्याएं में आधा से समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं सभी लोगों को न तो भरपेट भोजन मिल पाता है मिल पाता है न वस्त्र उन्हें सिर छिपाने का घर तक नहीं है उन्हें सिर छिपाने को घर तक नहीं है अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन लगी रहती है अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइन लगी रहती है तो आपको वेग पे सुलेख लिखना। थैंक यू। तो आज का हमारा टॉपिक है लोकोक्तियाँ। लोकोक्ति क्या है? जैसे मुहावरे होते हैं उसी तरह से लोकोक्ति होती हैं, लेकिन ये कुछ अलग होती हैं। लोकोक्तियाँ शब्द लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है। लोक यानी लोक और उक्ति यानी कथन। तो लोकोक्ति शब्द है जो लोक प्लस उक्ति से मिलकर बना है, अर्थात सामान्य जन में प्रचलित उक्तियाँ या कहावत। जो सामान्य जन है उनमें जो प्रचलित
जो बातें हैं, जो उक्तियां हैं, यानी किसी के द्वारा कही गई जो बात है वो कहावत हो जाती हैं, वही क्या है आपकी लोकोक्तियां हैं। जिस प्रकार से हमने मुहावरे पढ़े थे, तो मुहावरे क्या होते हैं, एक वाक्य का अंश होता है। मुहावरा क्या होता है, एक वाक्य का अंश होता है। लेकिन जो लोकोक्ति है वो पूर्ण रूप में एक वाक्य की तरह होती है। जो लोकोक्ति है वो अपने आप में क्या होती है, एक वाक्य की तरह होती है। लोकोक्ति का प्रयोग किसी बात का समर्थन या खंडन के लिए किया जाता है। जो लोकोक्ति है उसका प्रयोग किसी बात का समर्थन या खंडन करने के लिए किया जाता है। अब हमारी पहली लोकोक्ति है, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए, इसका अर्थ है ओछा आदमी ज्यादा दिखावा करता है। ओछा आदमी ज्यादा दिखावा करता है। अनिल, वाक्य में प्रयोग है, अनिल ने इंटरनेट चलाना क्या सीख लिया है, वह खुद को इंजीनियर समझने लगा है, इसी को कहते हैं अज्जल घगरी छलकत जाए। कि जो अनिल है कि किसी के लिए भी कि उसने कुछ काम करना सीख लिया है और अपने आप को उसमें महारथी समझता है, इसी को कहते हैं कि अज्जल घगरी छलकत जाए। कि यानी जो ओछा आदमी होता है, छोटा आदमी होता है, वो दिखावा अधिक करता है। दूसरा है आपका, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यानी सबकी अलग अलग राय होना। अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग, इसका अर्थ है कि सबकी अलग राय होना, अलग अलग राय होना। यहाँ सभा में कोई फैसला होने वाला नहीं है। यहाँ सभा में कोई फैसला होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी की अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग वाली स्थिति है। यानी यहाँ पर सभी की क्या है, अलग अलग राय है, इसलिए यहाँ पर कुछ भी फैसला होने वाला नहीं है। आगे तीसरा, आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ होना। आम के आम गुठलियों के दाम का अर्थ हो गया दोहरा लाभ होना। मैंने पुरानी गाड़ी जितने रुपए में खरीदी, 2 साल चलाकर उसे उतने में ही बेच दी। कि मैंने जो पुरानी गाड़ी जितने रुपए में खरीदी थी, मैंने 2 साल चलाई और उतने में ही बेच दी। इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। आगे चौथा है आपका, आंख के अंधे नाम नैन सुख। आंख के अंधे नाम नैन सुख, यानी आंख से अंधा नाम नैन सुख। तो क्या हो गया, काम के प्रतिकूल नाम होना। प्रतिकूल का अर्थ होता है विपरीत। काम के विपरीत नाम होना, जैसा काम वैसा उसका नाम, उसके बिल्कुल विपरीत होना। नाम तो तुम्हारा शांति है, नाम तो तुम्हारा शांति है, पर घर में अशांति मचाए रखती हो। तुम्हारे लिए ही कहा गया है, आंख के अंधे नाम नैन सुख। यानी तुम्हारा नाम तो शांति है, क्या है इसका अर्थ कि काम के विपरीत उसका नाम होना, कि काम जैसा नहीं करता उसके विपरीत नाम होना। पांचवा है आपका, आगे कुआ पीछे खाई। आगे कुआ पीछे खाई, दोनों और मुसीबत होना। आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ है दोनों और मुसीबत होना। अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो मेरी पत्नी नाराज हो जाती है, और नहीं करता तो तुम मेरे लिए तो आगे कुआ और पीछे खाई वाली स्थिति है। कि आगे कुआ पीछे खाई का अर्थ क्या हो गया, कि दोनों और मुसीबत होना। कि अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूँ तो मेरी पत्नी नाराज हो जाती है, और नहीं करता तो तुम, तो मेरे लिए तो वो स्थिति है आगे कुआ पीछे खाई वाली स्थिति है। तो बेटा जो लोकोक्तियाँ होती हैं उनको आप इस तरह से वाक्य लिखने के बाद में क्या करते हो, उसको अलग से उसको लिखा जाता है। यानी जो वाक्य लोकोक्ति हैं उसका पूरा अपना क्या होता है, एक वाक्य के रूप में प्रयोग उसको किया जाता है। तो आज की हमारी 5 लोकोक्तियां हैं। अज्जल गगरी छलकत जाए, ओछा आदमी अधिक दिखावा करता है, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, सबकी अलग राय होना, आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ, आंख के अंधे नाम नैन सुख, काम के प्रतिकूल नाम होना, आगे कुआ पीछे खाई, दोनों और मुसीबत होना। तो आपको ये 5 लोकोक्तियां नोटबुक में नोट करनी है और अच्छे से लर्न करनी है। थैंक यू। So students, let's start our today's cursive writing video. We will write, as you know that we have written our thought. If people are doubting how far you can go so far that you can't hear them anymore. Okay student, now I will write our cursive writing. Food can be classified. Food can be classified
as energy, as energy giving bodybuilding and protective food, protective food. Put a full stop, student. Again start with capital letter. Food contains 7 different nutrients. Different nutrients, comma, that is carbohydrates, carbohydrates, fats, proteins, vitamin, comma, minerals, comma, roughage, and water, and water. Carbohydrates, put a full stop, student. Again we will start from a capital letter, that is C. Carbohydrates are energy giving food, energy giving foods. Put a full stop, student. Fats provide more energy than carbohydrate. Carbohydrates. Put a full stop. Again start with capital letter. Proteins are body building foods. Put a full stop, student. Vitamin and minerals. Vitamins and minerals. Minerals are necessary for our good health. Good health and normal growth. Normal growth. So student, we have completed our today's writing work. I hope you will do it in your fair notebook. Enjoy this video also. So student, have a good day. Goodbye. Good morning, student. Welcome to online classes. This is Saroj
from MLP's International School, Rajpura. So student, as we are all nowadays doing our studies through video online classes, so in this series today I'm just going to tell you about the past perfect continuous tense. So students, before that I would like to tell you that now we were already just doing the preparation of entrance exams also. So in the end of the video I have just given you the few exercise regarding the same. So it isn't quite different from the daily routine studies. So it is quite impressive also and something different. So student, let us start. Topic past continuous tense. In this tense, as we all know, the main subject जो है इसमें मैं बताना चाहूंगी आपको, so that I had tried my best to tell the easiest way so the student which cannot be able to understand English to English, that will be helpful for them to understand the thing क्लियरली. सो बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसका मतलब पास्ट का मतलब होता है जो बीत चुका है, परफेक्ट ऑलरेडी वर्क हैज बीन डन, और कंटिन्यूस में क्या है जो कि कंटिन्यूसली हो, यानी कि पास्ट में जो काम आपका कंटिन्यूसली हो चुका है उसके बारे में जो है ये बताता है. तो इसमें क्या है, इसमें जो है मेन वर्ब के साथ एंड में रहा था, रही थी, रहे थे, और उसके साथ समय के साथ से का भी प्रयोग होता है. तो इसमें समय के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस एंड फॉर. Now, see the sentences. The first part of the sentence is affirmative. पहला जो भाग इसका है affirmative वो है सकारात्मक. जैसा कि ये सकारात्मक है तो इसमें मेन चीज आती है क्या है कि इसमें ना तो नॉट का यूज होता है और ना ही कोई क्वेश्चन पूछा जाता है. तो ये चीज आपको क्लियर है बच्चों. नाउ इसका रूल देखिए. रूल में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ जो है हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट के साथ हम क्या करते हैं यूज सिंस और फॉर. यानी कि अगर वो जो टाइम है उसमें अगर टाइम के अकॉर्डिंग हम ये लिखेंगे, अगर परफेक्ट इसमें डिस्क्रिप्शन है तो फॉर, और अगर डिस्क्रिप्शन नहीं है तो हम सिंस करके लिख करेंगे, उसके साथ हम टाइम का भी इस्तेमाल करेंगे. सो नाउ अब इसका एग्जाम्पल देखिए. राम हैड बीन वॉकिंग फॉर 2 hours, यानी कि राम जो है 2 घंटे से घूम रहा था. तो इसमें जो है ये फॉर किस लिए आ गया, क्योंकि इसमें डिस्क्रिप्शन दी हुई है 2 hours. तो इसी के लिए अब दूसरा सेंटेंस देखिए. आई हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा था. हियर टाइम हैज नॉट बीन कंफर्म, दैट डिक्लेयर्ड that is for how much time. So that's why we have used since over here. यहाँ पे समय, जैसे यहाँ पे ऊपर वाले एग्जाम्पल में 2 घंटे थे तो यहाँ पे हमें 2 घंटा कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है, इसलिए जो है इसको हमें यहाँ पे since इस्तेमाल किया हुआ है. नाउ स्विच टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज नेगेटिव सेंटेंस. जैसा कि नेगेटिव का मतलब नहीं, तो इसमें क्या है, इस सेंटेंसेस में नकारात्मक वाक्य में इन दिस सेंटेंस नॉट इज यूज्ड, इसमें यूज होता है नॉट. अब इसमें देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट प्लस हैड के बाद नॉट यूज होगा, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस टाइम अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस. तो अब इसमें देखिए एग्जाम्पल देखिए इसका. राम हैड नॉट वॉकिंग फॉर 2 hours, तो राम जो है 2 घंटे से नहीं घूम रहा था. इसमें फॉर वी हैव यूज इट फॉर बिकॉज हियर द टाइम इज गिवन परफेक्ट टाइम. सो नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. आई हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून, मैं दोपहर से नहीं खेल रहा था. Here time is not mentioned, so that we have used since instead of for. तो अब नेक्स्ट देखिए इसका नेगेटिव सेंटेंस के बाद द नेक्स्ट सेंटेंसेस द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. इसका मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, द सेंटेंसेस इन विच वी मोस्टली आस्क क्वेश्चंस. सो इसका रूल देखिए क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट, और अगर नहीं हमने यहाँ पे यूज होगा तो ही हम जो है नॉट करेंगे, अदरवाइज हम नॉट यूज नहीं करेंगे. ठीक है. और देखिए हैड सब्जेक्ट के साथ प्लस बीन
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस and for plus time. So this is the rule. According to that we have to make the sentence. So इसके according to just see the examples. I have given you the 2 examples. 2 examples मैंने आपको यहाँ दिया है, देखिए इसको. Where had Ram been walking for 2 hours? अब इसमें क्या है कि राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था. कहाँ घूम रहा था, तो हमने यहाँ पे हेड के साथ फर्स्ट वेयर यूज किया हुआ है. तो इस तरह से आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल. सिंस व्हेन हैड ही बीन प्लेइंग, वो कब से खेल रहा था. कब से, टाइम इज नॉट मेंशन. इन द अबव 2 hours is mentioned, that's why we have used for, and here the time is not clear, so since has been used over here. So this is the example of interrogative sentences. I think अब बच्चों आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और आपका रूल्स इसको आई कैन अंडरस्टैंड दैट कि आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो आपको लर्न नहीं होगा. सो यू हैव टू जस्ट सी द वीडियो 2 or twice or thrice एंड देन अंडरस्टैंड द थिंग क्लियर. 2 या 3 बार जब आप इस वीडियो को देखेंगे उसके बाद आपको समझ में आएगा और उसके माइंड से आपकी कभी भी क्लियर नहीं होगा. सो स्टूडेंट, अब देखते हैं एक्सरसाइजेस जो कि हम मोस्टली जो एंट्रेंस टेस्ट देते हैं उसमें ग्रामेटिकल का जो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये यहाँ पे एक्सरसाइज दी हुई है कुछ. अब इसमें देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए. डैश इज द सिनोनिम ऑफ क्रेम. अब ग्रेम का मतलब क्या होता है. सिनोनिम का मतलब होता है कि हमें उसके समानार्थक शब्द का अर्थ मतलब बताना है. अब इसमें यहाँ पे ग्रेम का देखिए वरीड है और सीरियस है और सैड, इसका मतलब ये होता है. तो इसके अकॉर्डिंग अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे. विद नो जॉब द फ्यूचर लुक ब्लिंक, यानी कि बिना जो है जो इसके बिना जॉब के जो हमारा भविष्य जो है बिल्कुल जो है अंधकार में है. तब अंधकार में है और बिल्कुल दुखी होता है, सैड होता है. तो यहाँ पे ग्रिम का मतलब भी जैसे वरिड हो या ये जो है सीरियस हो या फिर सैड, तो उसी तरह से यहाँ पे जो है इसका क्या है एग्जाम्पल मैंने दिया है ब्रिंक. तो डर्ट का मतलब जो है डस्ट का मतलब ये ब्लिंक है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ब्लिंक. ब्लिंक का मतलब सैड है, दुखी है, तो दुखी यहाँ पे भी, तो इसलिए ग्रिम का यहाँ पे सैड आएगा. ब्राइट भी नहीं आएगा क्योंकि ये इसका सिनोनिम नहीं है. और चेयरफुल, चेयरफुल इसका करेक्ट नहीं है, इसलिए इसका क्या मतलब आएगा ग्रिम. ग्रिम इज द सॉरी ब्लिंक इज द राइट आंसर ऑफ द सिनोनिम ग्रिम. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यहाँ पे हम सिनोनिम पूछते तो यहाँ पे हमने एंटोनिम पूछा हुआ है. द एंटोनिम ऑफ मर्की इज, यानी कि मर्की का जो है एंटोनिम्स क्या होता है. तो इसमें देखिए इसका है स्लेसी यानी कि धुंधलापन, मडी यानी कि जो है समथिंग नॉट क्लियर, और डार्क का मतलब होता है अंधेरा. तो हमें यहाँ पे एंटोनिम देखना है. मर्के का मतलब होता है उजाला, तो उजाला के जो है जो अंधेर, तो उसमें क्या इसका आंसर आएगा क्लियर. क्लियर डी इसका आंसर है. तो इस तरह से आपको जो है समझ करके और तब इसका आंसर देना है. अब देखिए स्विच टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है. आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ आइडन. आइडन का जो है मीनिंग है, ये एक मुहावरा है, इसका मतलब है टू बीट एड्यू. तो इसका मतलब क्या होता है, इसका आपको बताना है इस मुहावरे का मतलब क्या है. तो इसमें ऑप्शन देखिए. पहला टू वेलकम ए फ्रेंड, दोस्त को वेलकम करना. अब भी देखिए टू से गुड बाय टू समवन और समथिंग, किसी को जो है गुड बाय कहना. टू वर्क टुगेदर ऑन समथिंग, किसी के साथ जो है करना, और ऑफर समथिंग टू अ फ्रेंड. तो इसका जो है सही आंसर है कि टू से गुड बाय टू समवन और समथिंग, किसी को गुड बाय कहना. इस आइटम का मतलब इसका सही आंसर ये है. अब देखिए 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, यानी कि ये जो सेंटेंस दिया हुआ है द फर्स्ट हैरी पॉटर बुक कम 20 years since, तो इसका जो है आपको सही जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं इन ऑप्शन में से आपको सही देखना है. तो अब फर्स्ट देखिए, तो पहले देखिए द फर्स्ट हैरी पॉटर बुक वाज रिलीज्ड ऑन 20 years ago. तो आपका ये पहला ऑप्शन जो है ये करेक्ट है.
कैसे करेक्ट है? यहाँ पे बुक आती नहीं है, बुक रिलीज होती है। तो ये जो है आपका सही आंसर है इन चारों के बजाय। नाउ फिफ्थ देखिए। अब फिफ्थ का देखिए, फिफ्थ में है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। द टीचर्स वाज नॉट होप ऑफ सुशील्स सक्सेस। तो यानी कि टीचर जो है, इसकी यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन क्या है? होपिंग है, अनहोप है, होपफुल है और बिलीविंग है। अब देखिए, होप के साथ आईएनजी यूज नहीं होता है। अगर नॉट या है तो अन यहाँ पे नहीं यूज होगा। और इसी तरह से अब तो फिर इसका क्या आ जाएगा? होपफुल। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका होपफुल। सो स्टूडेंट, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि एंट्रेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग किस तरह से जो है क्वेश्चंस आते हैं। और आपको इसमें सबसे मेन चीज क्या होती है? यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन योरसेल्फ, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अंडरस्टैंड इट एंड देन सॉल्व। पहले आप प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़िए, अपने आप पे जो है पूरा विश्वास रखिए और उसके बाद समझ के तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सो स्टूडेंट, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।